So good morning to all of you and welcome back again in the Ballerao Science College Sauner online classes for BSc Semester 1. Myself Mr. CT for today, Assistant Professor, Department of Botany, Ballerao Science College Sauner. So dear students, welcome back again in our Semester 1, Paper 2, having the name Fungi, Plant Pathology, Lichens, Bryophyta and the Mushroom Cultivation. So the semester 1 paper 2, fungi, plant pathology, lichens, bryophyta and the mushroom cultivation. Here we are going to discuss the unit number 1 and unit number 4. The unit 1 consists of the part of fungi, general characters of fungi, classification of fungi which was given by the Alexopoulos and Mims 1996. Then we will going to discuss the economic importance of fungi. Then after these general characteristics, we will going to discuss some of the important genus which are involved in your syllabus. आपके syllabus में कुछ important genus involved हुए हैं. Life history of albugo, mucor, Puccinia and the Cercospora. Next to the unit 1, part of unit 4, we will discuss after the completion of unit 1. The first heading of this unit 4, that is skill development, which is a part of mushroom cultivation, which is very interesting and a famous topic in this semester 1, which is added from this year. ये टॉपिक जो है इसी साल से ऐड हुआ है, आप लोगों का कोर्स चेंज हो चुका है. Then this mushroom cultivation, it consists of the introduction point, that is the nutritional and medicinal value of edible mushroom and poisonous mushroom. Edible mushroom, having some of the examples we will take in the discussion of this unit 4, that is a Volvariella volvacea, Pleurotricitrinopiletus and Agaricus bisporus. Then the second point related to the unit 4, technology of mushroom cultivation, it is related to the infrastructure. The infrastructure required a mushroom unit, which is also called as a thatched unit, thatched house. Then the tools required for the mushroom cultivation, that is a polythene bags, vessels, inoculation hooks, inoculation loops, then low post stove, sieves, culture racks, water sprayer, tray, medium, etc. The last topic of this unit 4, that is a part of techniques, and these techniques involve the substrate, preparation of medium, spawn, sterilization, multiplication, bed preparation, which can be carried out with the help of some raw material like the paddy straw, sugarcane trash, banana leaves, etc. So here just we'll go through the revision point of view. हम लोग यहाँ पे revision point of view start करेंगे यहाँ से, that we are going to start and already discuss in the previous lecture, that is a part of unit 1. हम लोगों ने unit 1 का part start कर चुके हैं, and this unit 1 consists of the part of fungi. In this part of fungi, we will learn, or we will going to discuss the general characters of fungi, structure of fungi, economic importance of fungi, then pathogenicity and brief intro of some of the fungi. We know that the fungi are placed in a special category in the 5 kingdom or 6 kingdom system of classification, that is under the kingdom fungi. Then if you go through the characteristics of fungi, that fungi, these are not plants. They are non-photosynthetic, they are eukaryotic in nature, multicellular organism. They are non-motile. Most of the fungi are saprobes. They are living on the dead and decaying organism. That's why they are called as saprobes or saprophytic in nature. They show the absorptive mode of nutrition, and they are commonly called as the absorptive heterotrophs. Fungi जो होते हैं उनको absorptive heterotrophs कहा जाता है, because they are saprophytic in nature. Absorptive mode of nutrition means nothing but the saprophytic nutrition. Now, what is this absorptive heterotrophs? They digest the food first and then absorb it into their bodies with the help of the single filaments, which are popularly called as a hyphae. They release the digestive enzyme to break down the organic material of the host organism. Then they store their food material or food energy in the form of glycogen.
Then important decomposers and the recycles of nutrients in the environment. Means the fungi are playing important role as a decomposer and recycler of the nutrients in the environment. Most of the fungi are multicellular, except some of the example. For example, the unicellular algae. अगर unicellular yeast को अगर छोड़ा जाए, तो unicellular yeast को छोड़ के most of the fungi जो होती है, they are multicellular in nature. Then they lacks the true roots, stem and the leaves, and as like the plants. Plants के जैसे fungi के पास में root, stem या फिर leaves नहीं होते हैं. Then these are some of the photographs of fungal infection on the food material, that is fruits, then bread, then a slab of your home, then some of the material like the stone, then this is a stem of particular tree, which shows the growth of fungi in the form of the mushroom. Then cell walls are made up of chitin. This is a very important point related to the fungi. The cell wall of fungi is made up of chitin. It's not a chitin. And this chitin, it is a complex polysaccharide. ये chitin जो होता है वो complex polysaccharide होता है. Then body is called as thallus. It grows as a microscopic tubes or filaments called as a hyphae. अगर बॉडी के बारे में बात किया जाए, यानी फंजाई के बॉडी के बारे में, दैट द बॉडी ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ हाईली डेलिकेट थ्रेड लाइक और द नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, हाईली डेलिकेट फिलामेंट होते हैं, द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एंड दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज अ माइसीलियम. इसे माइसीलियम कहा जाता है. इस माइसीलियम में से अगर हम लोग सिंगल फिलामेंट निकालते हैं, सिंगल धागा अगर निकालते हैं फ्रॉम दिस माइसीलियम, दिस सिंगल फिलामेंट of the mycelium is called as the hyphae. The single filament को hyphae कहा जाता है. So the single filament obtained from the mycelium, the structure of body of fungi, is called as the hyphae. इसे हम hyphae कहेंगे. Then some of the fungi are internal or external parasites. कुछ fungi जो होती है internal parasite होती है, कुछ fungi जो होती है external parasites होती है. Internal parasites, that is endoparasites. External parasites, that is ectoparasites. Few fungi acts like predators. कुछ fungi जो होती है predator का काम करती है and capture the prey like the roundworms. Roundworm को भी वो मार सकती है fungi. Some of the edible and the poisonous fungi of the photographic image. Edible मतलब उनको हम कंज्यूम कर सकते हैं, उनको खा सकते हैं, ये सभी edible fungi है मशरूम के फॉर्म में. And mushroom, it is nothing but the fungi. यहाँ पे जो photographic image दी है, it is all about the poisonous mushroom or the poisonous fungi. One thing about this poisonous fungi, it is very attractive. ये बहुत attractive होते हैं poisonous fungi. Then the produce with sexual and asexual spores. Means if we go through the part of reproduction of fungi, they produce with the help of both sexual reproduction and asexual reproduction. Asexual reproduction is carried out with the help of spores. They classified by their sexual reproductive structures. These are the different structures of the reproductive stages in case of the fungi. The fungi grows best in the warm, moist environment. वार्म और मॉइस्ट एनवायरनमेंट में बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं. अगर आपके घर में कहीं थोड़ा वार्म टेम्परेचर रहा, फिर मॉइस्ट यानी थोड़ा पानी वगैरह जहाँ पे रहा, जहाँ पे मॉइस्चर रहता है, ऐसी जगह पे ये फंजाई बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो होती है. Mycology, it is the study of fungi. The branch of biology which deals with the study of fungi is called as mycology, and the scientist or the researcher related with the study of fungi is called as a mycologist. Then fungicide is a chemical used to kill the fungi. Fungi को मारने के लिए chemical बनाया जाता है, उसे fungicide कहेंगे हम लोग. So here is a photographic image of fungicide. The fungicide kills the leaf fungus. ये leaf आप लोगों ने ऐसे देखे होंगे कभी. इस पे देखो येलो पैचेस दिखाई दे रहा है आप लोगों को, स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं. These spots are the infection of fungi, and this infection can be removed with the help of this fungicide.
देन फंजाई इंक्लूड द पफ बॉल्स। फंजाई जो होते हैं बॉल्स के फॉर्म में भी होते हैं, स्पंजी स्पंजी बॉल्स के फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे एक फोटोग्राफ की इमेज दी है पफ बॉल की, पफ बॉल्स। देन ईस्ट, अभी अभी देखा ईस्ट हम लोगों ने, यूनिसेलुलर फंजाई। मशरूम भी देखे अभी कुछ फोटोग्राफ की इमेज में। टोड स्टूल, टोड स्टूल मैंने आपको समझाया था कि टोड स्टूल जो होता है ये पॉइजनस मशरूम होता है। जनरली आप लोगों को अगर कभी आप सिटी के बाहर या फिर किसी कभी खेत में वगैरह जाते हो तो पेड़ पे आप लोगों को ये मशरूम दिखाई देते हैं। एंड दैट मशरूम इट इज नथिंग बट टोड स्टूल मशरूम, ये टोड स्टूल मशरूम होते हैं। The fungi include the puffballs, yeast, mushroom, toadstool, rust, smuts, ringworm, and molds. ये सभी टाइप्स है फंजाई के, आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। अगर इनमें से कोई भी अगर एक वर्ड आता है, रट्स आता है, स्मट्स आता है, रिंगवर्म आता है, इवन मोल्ड्स आता है, सो ऑल दीज आर नथिंग बट द फंजाई, तो वो सभी फंजाई रहेंगी। द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज मेड बाय द पेनिसिलियम मोल्ड। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा कि सबसे पहला एंटीबायोटिक जो बना था पेनिसिलिन बनाया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? दीज आर द प्रोडक्ट्स व्हिच यूज्ड टू किल द अनदर पैथोजेनिक एजेंट। पैथोजेनिक एजेंट, हमारे बॉडी में कोई पैथोजेनिक एजेंट अगर एंटर हो जाता है, इवन पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी एंटर हो जाता है, तो उसको मारने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक्स की टैबलेट्स लेते हैं। एंड दिस एंटीबायोटिक इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द फंजाई, प्रोड्यूस फंजाई की हेल्प से प्रोड्यूस होता है एंटीबायोटिक। सबसे पहला एंटीबायोटिक था पेनिसिलिन, की जो पेनिसिलियम नाम के एक मोल्ड से, ठीक है, मोल्ड भी अभी हमने देखा, मोल्ड इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ फंजाई। नाउ द फंजाई इन साइज, फंजाई रेंजेस इन साइज। यूनिसेलुलर ईस्ट, ये बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखना पड़ता है ईस्ट। और एक जो होता है कि जो बहुत बड़ा होता है 20 to 60 सेंटीमीटर, दैट इज अ लार्ज पफ बॉल, ये पफ बॉल है, इट इज अगेन द फंजाई। Now go through the vegetative structure, which is a part of non-reproductive structure. Means non-reproductive means what? This structure cannot be take part in the process of reproduction. Now the hyphae. What is meant by this hyphae? Hyphae के बारे में मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था जब हम लोगों ने जस्ट स्टार्ट किया था स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई के बारे में। So in the earlier lectures we have just started the lecture of fungi. हम लोगों ने फंजाई का लेक्चर जब स्टार्ट किया था तब मैंने आप लोगों को वहां पे बताया था the fungi, the body of fungi, it is made up of highly delicate thread like और the network like structure, जाली जैसा यानी कॉटन का जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। सभी ने कॉटन देखा है, कपास देखा है, तो कपास में जैसे कॉटन में जैसे धागे होते हैं छोटे छोटे, वैसे ही धागे फंजाई के स्ट्रक्चर में होते हैं। फंजाई जो होता है किसी भी फूड मटेरियल पे ग्रो होता है, आप लोगों ने घर पे भी देखा है फंजाई को, ब्रेड पे या फिर रोटी पे वगैरह, या फिर किसी फूड मटेरियल पे ग्रो होते हुए देखा होगा आप लोगों ने। और वो जो स्ट्रक्चर शो करता है दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज माइसेलियम। इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे माइसेलियम। इस माइसेलियम के अंदर एक सिंगल फिलामेंट होता है, द सिंगल फिलामेंट प्रेजेंट इनसाइड दिस माइसेलियम, दिस सिंगल फिलामेंट इज कॉल्ड एज हाइफी, जिसे हाइफी कहा जाता है। जिस हाइफी इट इज ट्यूबुलर इन शेप, ठीक है, हाइफी जो होती है वो ट्यूबुलर फॉर्म में होती है, यानी अंदर से हॉलो होती है, ठीक है, इसके अंदर से होल होता है, दैट्स व्हाई दे यूज वर्ड ट्यूबुलर शेप, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। द हाइफी इज ट्यूबुलर इन शेप, one continuous cell then filled with the cytoplasm and nuclei। जो हाइफी होती है उस हाइफी के अंदर साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। देन मल्टीन्यूक्लिएट, द हाइफी इट मे बी मल्टीन्यूक्लिएट, हाइफी जो होती है वो मल्टीन्यूक्लिएट होती है। देन इट कंसिस्ट ऑफ द हार्ड सेल वॉल, दैट हार्ड सेल वॉल इट इज मेड अप ऑफ काइटिन, सो इन केस ऑफ द इंसेक्ट एक्सोस्केलेटन, इंसेक्ट एक्सोस्केलेटन होता है। आई थिंक कुछ लोगों को नींद आ रही है क्लास में, ठीक है, तो ये नींद खुलेंगी कब मैं बताता हूँ आप लोगों को, जब आप लोगों का शेड्यूल डिक्लेयर हो जाएगा रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर। तो अभी ऐसा नहीं सोचना कि हर साल कोरोना इन्फेक्शन आएगा या फिर पैंडेमिक सिचुएशन होगी और आप लोगों के ऑनलाइन पेपर्स होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे तो जो थे इस साल के वो बच गए, उनको भी
पता नहीं था कि एग्जाम कैसे होती है करके फर्स्ट सेमेस्टर की, तो फिर वहां पे समझ में आ जाएंगे, आप लोगों की नींद बहुत अच्छी तरह से खुल जाएंगी वहां पे। सो दैट ट्यूबुलर शेप ऑफ हाइफी, हाइफी जो होती है वो ट्यूबुलर शेप में होती है, एक वन कंटिन्यूअस सेल के फॉर्म में होती है। इट इज फिल्ड विद द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियाई, देन इट इज मल्टीन्यूक्लिएट इन नेचर। देन द सेल वॉल ऑफ हाइफी इट इज मेड अप ऑफ काइटिन, सेल वॉल जो बनी हुई रहती है हाइफी की वो काइटिन से बनी हुई रहती है। और काइटिन जो होता है आप लोगों को और कहाँ पे मिलेगा, इन केस ऑफ द एक्सोस्केलेटन्स ऑफ द इंसेक्ट। इंसेक्ट जो होते हैं उनकी बॉडी जो होती है उसके अंदर बोन्स का स्केलेटन नहीं होता है। दैट इज नॉट कंसिस्ट ऑफ द स्केलेटन मेड अप ऑफ बोन्स, जस्ट उनका आउटर कवरिंग होता है वही टफ होता है, एंड इस आउटर कवरिंग इट इज कॉल्ड एज एक्सोस्केलेटन। कोई भी इंसेक्ट अगर आप लेते हो तो उनकी बॉडी का कवरिंग जो होता है, आउटर कवरिंग जो होता है, it is called as exoskeleton, and this exoskeleton it is made up of the tough material that is the chitin. Then if you go through the stolons and the rhizoids, ठीक है, यहाँ तक कि हम लोगों ने देखा था जो इसके पहले का पॉइंट था इन केस ऑफ द हाइफी, हाइफी के बारे में हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट टू द हाइफी we are going to discuss the stolons and the rhizoids. Now what are these stolons and rhizoids? It also appears in the diagrammatic representation. यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम भी दिख रही है, वहाँ पे हम लोगों ने इंडिकेट भी किया है कि ये जो आप लोगों को हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ब्रांच स्ट्रक्चर, ब्रांचिंग जैसा एक सिंगल ब्रांच का स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस सिंगल ब्रांच स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड एज स्टोलॉन। और नीचे में आप लोगों को यहाँ पे रूट्स जैसे कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, these roots like structure are nothing but the rhizoids. तो फंजाई के केस में रूट्स नहीं होते हैं, ट्रू रूट्स नहीं होते हैं, लेकिन रूट्स के जैसा स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है और रूट्स के जैसे फंक्शन परफॉर्म करने की कोशिश करता है, तो उसे राइजोइड्स कहा जाता है। Now the stolons, the horizontal hyphae that connect the group of hyphae to each other. ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे यहाँ पे एक एक पॉइंट कि जो हाइफी के बारे में तो आपको पता होना चाहिए। देखो अभी यहाँ पे इन लोगों ने ब्रांच नहीं कहा है या फिर फिलामेंट नहीं कहा है फंजाई का, इन लोगों ने डायरेक्टली वर्ड यूज किया है हॉरिजॉन्टल हाइफी। तो आपको सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि हाइफी मतलब क्या होता है, ठीक है। नहीं तो ऐसे भी कुछ मिलेंगे हमें जब भी हमारे ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे कि दैट सर व्हाट इज मीन बाय दिस हाइफी, हाइफी क्या होती है, ठीक है। तो हाइफी में बार बार बता चुका हूँ हाइफी के बारे में कि the body of fungi is made up of the highly delicate thread like network like structure, जाली जैसा स्ट्रक्चर होता है फंजाई का। उस जाली जैसे स्ट्रक्चर में बहुत सारे धागे होते हैं, बहुत सारे फिलामेंट होते हैं, उनमें से अगर एक सिंगल फिलामेंट अगर हम निकालते हैं, द सिंगल फिलामेंट ऑफ माइसेलियम, राइट, द सिंगल फिलामेंट ऑफ माइसेलियम की जो बहुत ही नाजुक होता है, डेलिकेट होता है, उसको अगर हम लोग टच भी कर लेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो वो जो सिंगल फिलामेंट होता है माइसेलियम का, व्हाट इज दिस माइसेलियम, द बॉडी ऑफ फंजाई, माइसेलियम इट इज अ बॉडी ऑफ फंजाई। उस माइसेलियम में से अगर हम लोग सिंगल फिलामेंट निकालते हैं, द सिंगल फिलामेंट ऑफ माइसेलियम इज कॉल्ड एज हाइफी, इसे हम लोग हाइफी कहेंगे। देन कम टू द स्टोलॉन्स, स्टोलॉन्स दैट इज हॉरिजॉन्टल हाइफी, हॉरिजॉन्टल मैंने आपको बताया ये हॉरिजॉन्टल हाइफी है। यहाँ पे एक फिलामेंट दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इतना बड़ा नहीं होता है, ये माइक्रोस्कोप के अंडर ही देखोगे तभी देखेंगे आप लोगों को, ठीक है। ऐसे नेकेड आइज से आप लोगों को इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देगा कभी। सो हॉरिजॉन्टल हाइफी दैट कनेक्ट्स द ग्रुप ऑफ हाइफी टू ईच अदर, यानी ये जो हॉरिजॉन्टल हाइफी होती है कि दो एक दूसरे को यानी एक दूसरे हाइफी को जोड़ने का काम करती है, तो उस हाइफी को या फिर उस सेगमेंट को हम कहेंगे स्टोलॉन। देन कम टू द राइजोइड्स, the root-like parts of hyphae that anchors the fungus. मैंने आपको पहले ही बताया कि फंजाई के केस में रूट्स तो नहीं होते हैं, लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर जो डेवलप होता है फंजाई के केस में, the root-like part or the root-like structure of hyphae, हाइफी बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, फिर से बोल रहा हूँ आप लोगों को, ये हाइफी मतलब क्या होता है, द सिंगल फिलामेंट ऑफ माइसेलियम, माइसेलियम का जो सिंगल फिलामेंट होता है उसे हम लोग हाइफी कहते हैं। और उस हाइफी को अगर रूट लाइक पार्ट्स डेवलप हो जाते हैं नीचे की तरफ से, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स अगर डेवलप हो जाते हैं, दीज रूट लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज राइजोइड्स, उन्हें हम लोग राइजोइड्स कहेंगे, राइट।
Now come to the next point. The cross walls called as the septa may form a compartments. जो हाइफी होती है, ठीक है, हाइफी जो होती है, the single filament of mycelium is called as hyphae. तो हाइफी को अगर कंपार्टमेंट्स डेवलप हो जाएंगे, राइट, द कंपार्टमेंट्स लाइक दिस, यहाँ पे दिख रहा है आपको कंपार्टमेंट्स, राइट, these are the compartments. और यहाँ पे एक ब्रांचिंग भी आई है, यहाँ पे देखोगे नो क्रॉस वॉल्स, यहाँ पे कंपार्टमेंट्स नहीं है, राइट, यू कैन सी हियर, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, एक हाइफी के केस में यहाँ पे आप लोगों को कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, ठीक है, और दूसरी हाइफी के केस में यहाँ पे आपको कंपार्टमेंट्स नहीं दिख रहे हैं. So the fungi may be classified based on the cell division with or without cytokinins, or septate or cynocytic hyphae, that is without septa. और septate hyphae क्या होती है? Without septa. और septa यानी क्या बताया हम लोगों ने? Cross walls. ये जो cross walls होती है, these cross walls जिस hyphae में आपको मिलेंगी, उसे हम कहेंगे septate hyphae, ठीक है. क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट है तो सेप्टेड हाइफी, दैट इज विद सेप्टा, और क्रॉस वॉल एब्सेंट अगर है, दैट इज द असेप्टेड हाइफी व्हिच हैविंग द अनदर नेम सिनोसिटिक हाइफी, उसको सिनोसिटिक हाइफी भी कहा जाता है. सो कम टू द पॉइंट दैट क्रॉस वॉल्स कॉल्ड एज द सेप्टा. Now what is meant by this septa? The cross walls present on that single filament. सिंगल फिलामेंट में अगर क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट रहती है तो उसे हम सेप्टा कहेंगे. इट मे फॉर्म द कंपार्टमेंट्स. ये जो सेप्टा होता है यानी क्रॉस वॉल्स जो होती है, दिस क्रॉस वॉल्स इट प्रोड्यूस द कंपार्टमेंट्स बनाती है, ठीक है, डब्बे बनाती है, कंपार्टमेंट्स लाइक द सेल्स और द रूम्स. देन सेप्टा हैव पोर्स फॉर द मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म. सेप्टा जो होता है उसके बीच में पोर्स होते हैं, एज लाइक द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फॉर द मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म की मूवमेंट होने के लिए उस सेप्टा के बीच में वहां पे पोर्स होते हैं. पोर्स मतलब छोटे छोटे होल्स होते हैं. इट फॉर्म्स द नेटवर्क कॉल्ड एज अ माइसीलिया दैट रन्स थ्रू द थैलस और द बॉडी. देखो माइसीलियम के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसा स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, बहुत सारे धागे मिला के एक स्ट्रक्चर जो बन जाता है, तो जो धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है फंजाई का, उसे माइसीलिया या फिर माइसीलियम कहा जाता है. मैं आपको पूछूंगा जब भी हमारे ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगे और जैसे ही प्रैक्टिकल्स स्टार्ट हो जाएंगे हमारे, सो डेफिनेटली वी विल गेट डिस्कशन विद दिस माइसीलियम, हाइफी एंड फंजाई. तो जैसे ही हमारे ऑफलाइन लेक्चर्स स्टार्ट हो जाएंगे तो हम लोग वहाँ पे ये जनरल जो पॉइंट्स है, जैसे कि मैं आपको पूछूंगा कि व्हाट इज मीन बाय माइसीलियम, व्हाट इज मीन बाय हाइफी, व्हाट इज सेप्टेट हाइफी, व्हाट इज असेप्टेट हाइफी, व्हाट इज मीन बाय सेप्टा, व्हाट इज मीन बाय असेप्टेट कंडीशन. तो देखेंगे हम लोग वहाँ पे कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों ने रिवाइज किया है और कितने लोगों ने यहाँ पे नींद ली है ऑनलाइन क्लासेस में. So just take a look regarding this hyphae. The cross walls called as a septa. Cross walls जो होती है सिंगल फिलामेंट के स्ट्रक्चर पे, उसे हम सेप्टा कहते हैं. It may forms a कंपार्टमेंट्स बनाती है. सेप्टा हैव पोर्स. सेप्टा जो होता है उस पे पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, फॉर द मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म. It forms the network like structure called as mycelium. मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि कंपार्टमेंट्स कैसे बनते हैं. So here you can observe that the compartments, the compartment, one cell or the one filament, it shows the presence of compartments, and the one filament it shows the absence of compartments.
ये जो फिलामेंट है, इस फिलामेंट के सरफेस पे आप लोगों को ये क्रॉस वॉल्स दिखाई दे रही है, और ये क्रॉस वॉल्स की हेल्प से यहाँ पे अलग अलग कंपार्टमेंट्स यानी सेल्स बन चुकी है। अभी इन्होंने कहा है कि ये जो आपको क्रॉस वॉल दिखाई दे रही है, दिस क्रॉस वॉल्स इट कंसिस्ट ऑफ द पोर्स। इसका मतलब यहाँ का जो साइटोप्लाज्म है, एक कंपार्टमेंट का साइटोप्लाज्म दूसरे कंपार्टमेंट के साइटोप्लाज्म में आ सकता है, ठीक है। फॉर द मोमेंट ऑफ cytoplasm, these cross walls having the pores, and these cross walls are called as septa. इसे सेप्टा कहा गया है। तो जिस फिलामेंट के पास सेप्टा प्रेजेंट रहेगा, उस फिलामेंट को हम क्या कहेंगे? सेप्टेट, राइट? विथ सेप्टा, the presence of septa called as a septate hyphae, and absence of septa, यहाँ पे क्रॉस वॉल्स नहीं है, absence of septa is called as aseptate hyphae. This aseptate hyphae having the another name, that is a cynocytic hyphae. उसे cynocytic hyphae भी कहा जाएगा। So the cross walls called as the septa may having the compartments, septa having the pores for the movement of cytoplasm. It forms the network like structure, means the filament, बहुत सारे फिलामेंट अगर रहेंगे, देखो यहाँ पे उन्होंने बताया है माइसीलियम, यहाँ पे एक नाम दिया है, फोटोग्राफ में आप लोग देख सकते हो माइसीलियम। तो आप लोगों को ये जाली जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स, राइट? एंड दिस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द वेरियस फिलामेंट्स, बहुत सारे फिलामेंट, ठीक है, ये बहुत सारे फिलामेंट एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, एंड दिस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द बॉडी ऑफ फंजाई, एंड दिस बॉडी ऑफ फंजाई हैविंग द स्पेसिफिक नेम, दैट इज अ माइसीलियम। उसे एक स्पेसिफिक नाम है जिसे हम लोग कहेंगे mycelium. So it forms the network-like structure. It is called as a mycelia that runs through the thallus of the body. So the mycelium, it is the body of fungi. Now come to the point that the fungi gets carbon from the organic sources. Fungi को जो कार्बन मिलता है, कार्बन सोर्स जो मिलता है, it is from the organic sources. Organic sources means what? Organic sources like the dead bodies of the plants and animals. Plants और animals की जो dead bodies रहेंगी, that dead bodies of plants and animals, it is the part of organic sources of the organic materials. जो organic material रहेगा, उस organic material से fungi को कार्बन मिलेगा. Tips of hyphae release the enzymes. So this is the diagrammatic representation of the tip of hyphae or the filament. एक single filament का यहाँ पे इन्होंने structure बताया है. The nucleus directs the digestive process. एक filament दिखाया उन लोगों ने, उस filament के अंदर nucleus दिखाया है. This nucleus guides, ये nucleus guide करता है digestive process को. Digested material is then used by the hyphae. So the tip of this hyphae, it release the enzyme. यहाँ पे लिखा है, देखो enzymes लिखा है, राइट? और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, these are the leaves, ठीक है, dead leaves of the plants. प्लांट्स के ये जो डेड लीव्स है, इन डेड लीव्स को ब्रेक डाउन करने के लिए या फिर डाइजेस्ट करने के लिए the tip of hyphae, it release some enzymes, and after releasing enzymes, the enzymatic breakdown will be carried out. ठीक है, वहाँ पे enzymatic breakdown होगा. So the fungi get carbon from the organic sources. Tips of hyphae release the enzymes, and the enzymatic breakdown of the substrate products diffuse back into the hyphae. ठीक है, तो enzymatic breakdown जो होता है substrate का. Now what is meant by this substrate? Substrate आप ध्यान में रखना है आपको. Substrate it is a raw material. ये raw material होता है. रॉ मटेरियल मैंने अभी भी आपको बताया, दैट इज द डेड बॉडीज ऑफ द प्लांट्स और द एनिमल्स. प्लांट्स और एनिमल्स की जो डेड बॉडीज रहेंगी, इट इज अ सबस्ट्रेट इन केस ऑफ द फंजाई. सो एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ द सबस्ट्रेट एंड देन द प्रोडक्ट्स लाइक प्रोडक्ट्स डिफ्यूज बैक इनटू द हाइफी. यानी ये जो मटेरियल रहेंगे, ऑर्गेनिक मटेरियल जो रहेंगे, उस ऑर्गेनिक मटेरियल का एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन होगा. इसको ब्रेकडाउन किया जाएगा फंजाई की हेल्प से,
और ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम्स रिलीज होंगे। एंजाइम्स कहाँ से रिलीज होंगे? एंजाइम्स आर रिलीज फ्रॉम द टिप ऑफ फंजाई और द टिप ऑफ हाइफी। ठीक है, so the enzymes are released from the tip of hyphae, and as the enzymes are released from the tip of hyphae, these enzymes they start to break down the organic material or the dead bodies of the plants and animals. ठीक है, now अभी भी कुछ लोग नींद में ही हैं, बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए कुछ सवाल रहेंगे कल। ठीक है, इसलिए मैं वीडियोस ऑन करके रखने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम होता है एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग। आप लोगों की मैंने रात भर मोबाइल्स वगैरह यूज करते होंगे आप लोग, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड दिन में फिर सुबह सुबह 9 बजे क्लास रहता है, तो फिर नींद तो आएंगी ऑब्वियसली। इट इज सो टोटली नेचुरल। ठीक है, ये नेचुरल होता है। तो आप लोगों की बहुत अच्छी तरह से नींद खुलेंगी जब हमारे प्रैक्टिकल्स होंगे और जब हमारे सेमेस्टर एग्जामिनेशन होंगे। So that fungi get carbon from the organic sources, and tips of hyphae release the enzymes, the enzymatic breakdown of substrate, then products diffuse back into the hyphae. So this is all about the just introduction and the general characteristic of fungi again, and we have discussed in detail in the today's lecture. आज हम लोगों ने discuss किया था that about the body of fungi. Body of fungi के बारे में discuss किया हम लोगों ने। The body of fungi, it is commonly called as the mycelium, and this mycelium it shows the presence of vegetative structure that is a part of hyphae. ठीक है, hyphae, the single filament of mycelium is called as hyphae, which is tubular in shape, which consists of the cytoplasmic structure. Then hyphae it may be a septate or aseptate. इसके बारे में, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है मैं आप लोगों को कल पूछूंगा, देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाते हैं। और जो लोग नींद में थे, एक दो लोग मुझे दिखे यहाँ पे कि जिनके वीडियोस ऑन थे, कुछ वीडियोस ऑफ करके भी सोए होंगे, तो उन लोगों के बारे में भी चेक करेंगे हम लोग, दैट दे गिव आंसर्स और नॉट। ठीक है, आप लोग आंसर दे पाते हो कि नहीं दे पाते हो। सो जस्ट नाउ यू हैव टू गो इन योर चैट बॉक्स। आप लोग अपने चैट बॉक्स में जाएंगे एंड राइट डाउन देयर योर नेम एंड वन वर्ड दैट इज प्रेजेंट। आप लोगों को अपने चैट बॉक्स में जाना है, वहां पे एक वर्ड लिखना है आपका नाम और प्रेजेंट करके। कुछ लोग ऐसे भी थे क्लास में, वीडियोस ऑन करो सब लोग अपना। कुछ लोग ऐसे भी थे कि क्लास शुरू हो गया और आधे क्लास में ज्वाइन हुए हैं, तो आप लोगों का यहाँ पे टाइम भी रिकॉर्ड होता है कि आप लोगों ने कहाँ कब क्लास ज्वाइन किया और कब क्लास लेफ्ट किया। जिन लोगों के वीडियोस ऑफ रहेंगे उनकी एब्सेंटी लगेंगी। यहाँ पे एब्सेंटी दिखा दूंगा मैं अगर वीडियोस ऑफ होते हैं तो आपके। गैलेक्सी J2, आकांक्षा, खुशी कुल्ले, मयूरी जीवतोड़े, इन लोगों की एब्सेंटी लगेंगे अभी। देन ओप्पो A5s, अभी भी कुछ लोगों के वीडियोस ऑफ ही है। अमीशा छानीकर, आकांक्षा, देन खुशी कुल्ले, मयूरी जीवतोड़े, देन अंजलि। आप लोगों को समझ में नहीं आता है आई थिंक, कमांड जो दी जाती है तो वो बार बार बतानी पड़ती है कमांड। ठीक है, नो प्रॉब्लम, आई हैव दैट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है हमारे पास उसके लिए, डेफिनेटली वी विल गेट बैक इनटू द सॉल्यूशन।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही टॉपिक लेंगे। जिन लोगों ने वीडियोस ऑफ रखे थे उनकी एब्सेंटी लगेंगी यहाँ पे। आज का टॉपिक यही खत्म करते हैं, बाकी का टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे, रिवाइज करेंगे, तभी जाके आगे बढ़ेंगे। और कुछ क्वेश्चंस भी बनेंगे, तो क्वेश्चंस के आंसर आपको देने पड़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही टॉपिक, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सब लोगों को स्टे होम, स्टे सेफ एंड सब लोगों को बाय।